Good morning, everyone. Myself, Dr. Shantanu Prakash Agrawal, Scientific Secretaries, GP Association. The topic for today is vaccination and some related issues. Again, it is also related to COVID-19, which we are worried about in the upcoming year. So, I would like to invite Dr. Imran Ahmed Khan, who is Associate Professor, BRD Medical College, to give us a deep and brief knowledge about this topic and help us to gain something new about this thing. Thank you. जैसे कि पिछला लेक्चर कोविड पे हुआ था और एक साल के गैप के बाद फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चीज़ें तब में अब में बहुत बदल चुकी हैं। जिस समय हम बात कर रहे थे उस समय वैक्सीन नहीं थी, आज की डेट में वैक्सीन आ चुकी है, सेकेंड फेज़ वैक्सीन का चल रहा है। तो हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड सम रिलेटेड इशूज़। So waiting for herd immunity to occur naturally will be time consuming and costly in terms of not only increased morbidity and mortality but also from impact on livelihoods due to the continued containment measures that would be required to prevent a faster spread of the virus. So as immunization is one of the most successful and cost effective health intervention to prevent infectious disease, vaccines against COVID-19 are considered to be the great importance to prevent and control COVID-19. Its potential benefits outweigh the potential risk, इसलिए ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। So the fight against COVID-19 is possibly entering in final stage with our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi announcing vaccination drive starting from January 16. This announcement preceded Herculean task ahead in which 30 million Indians were planned to be vaccinated in first phase of the drive, targeting primarily healthcare workers and frontline workers, the elderly and those with comorbidities. तो जो फर्स्ट फेज़ में ये बताया गया है कि किनको पहले टारगेट करना है, ये अक्रॉस द ग्लोब हर जगह यही फॉलो हो रहा है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, क्योंकि जिनको कॉन्टैक्ट के चांस ज़्यादा हैं पहले उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि जैसे हमारी हेल्थ फैसिलिटी पहले से कुछ फील्ड में कमज़ोर मानी जाती है, अगर वो भी बीमार पड़ गया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो पहले उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है और इसके बाद बाकी जनरल पब्लिक का नंबर आएगा। So the complexity of logistics, cost and strategies for delivering existing, underused and new vaccines has increased exponentially. So immunity after infection, अगर कोई इन्फेक्शन होता है किसी को तो एक साइड पे तो हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाए सिर्फ एक ही इन्फेक्शन से। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी हो। इन बिटवीन देर आर अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ इम्यूनिटी। जैसे अगर चिकन पॉक्स के लिए देखें तो एक बार इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो ये बहुत ही रेयर होता है कि दोबारा उसको चिकन पॉक्स हो। एक इन्फेक्शन से ही लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बॉडी में हो जाती है। दूसरी तरफ HIV एड्स है, ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है जो उतनी तेज़ी से चेंज करता है कि इसके लिए वैक्सीन अभी बन नहीं पा रही है। एक वैक्सीन आई थी जो ट्रायल फेज़ में थी RV144 के नाम से, लेकिन उसको देखा गया कि 28% ही ट्रायल में उसकी एफिकेसी थी। तो WHO कहता है कि कोई वैक्सीन हम आगे तब बढ़ने देंगे जब कम से कम 50% उसकी एफिकेसी हो। तो 20% एफिकेसी उसकी थी तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। हालांकि कुछ और कैंडिडेट वैक्सीन HIV के लिए काम चल रहा है, अभी कोई फाइनल लेकिन नहीं है। सो व्हाट इज अ वैक्सीन? अ वैक्सीन इज एन इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइंड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज। Vaccines have been effective in protecting against several deadly diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis and many more, and at present prevent roughly 2.5 million deaths per year. तो ये वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस है। The development of a safe and effective vaccine usually requires several years of preclinical and clinical stages of evaluation and requires strict regulatory approvals before it can be manufactured in bulk and distributed. जैसे कि फर्स्ट फेज़ में यह है कि सिर्फ 3 करोड़ को लगेगा, बाकी और नेक्स्ट स्टेज में और लोगों को बढ़ाया जाएगा। तो कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन मार्केट में आती है तो उसके पहले उसको बहुत ही रेगुलेटरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, फेज़ 1, 2, 3, 4, कुछ केसेस में फेज़ 0 ट्रायल भी होता है प्री क्लिनिकल और फेज़ 1 के बीच में। तो जो प्री क्लिनिकल फेज़ है वो लैबोरेटरी में किए जाते हैं, वो एनिमल्स पे किए जाते हैं या सेल लाइनेज पे किए जाते हैं। अब फेज़ 1 है उसमें 20 to 80 कम पीपल होते हैं। इसके ट्रायल में जब आगे अगर कुछ हमको
सही रिजल्ट मिलता है, एफिकेसी मिलती है, तो हम आगे बढ़ते हैं और फेज़ 3 तक जो लाइसेंस नहीं मिलता, फेज़ 3 के रिजल्ट अगर जो है सेटिस्फैक्ट्री होते हैं तो उसको लाइसेंस दिया जाता है और फिर मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सार्स आया 2002 में, मर्स आया 2012 में, उसके लिए तो कोई वैक्सीन नहीं है। 2019 में आया कोविड और इसकी वैक्सीन 1 साल के अंदर बन गई। तो ये भी कुछ लोगों में इशू होता है कि इतनी जल्दी जो वैक्सीन बन गई तो इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऑन एन एवरेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वैक्सीन एंटरिंग द मार्केट टेकन फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टेज थ्रू क्लिनिकल टेस्टिंग एंड लाइसेंसर इज बिलो 10%। जैसा कि हमने RV144 के बारे में देखा, 28% इफिकेसी आई तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। The government needs to reassure citizen that fast tracking has not been at the cost of scientific and ethical values। हालांकि 1 साल के अंदर वैक्सीन बन के तैयार हो गई और लगनी भी शुरू हो गई, लेकिन एथिकल और साइंटिफिक वैल्यूज़ पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। व्हाट डज द लॉन्ग टर्म फ्यूचर लुक्स लाइक? विल सार्स कोरोना वायरस 2 और कोविड बिकम एंडेमिक इन द पास्ट? In post-endemic phase, pandemic phase, it is likely, but it is too early to be sure what from this endemicity will take. Vaccines will be just one determinant and reinfection is another. तो अगर हम कोविड वैक्सीन के बारे में बात करें, तो अगर एक जनरल कोई वैक्सीन के बारे में हम बात करते हैं तो 1 डिकेड करीब मोटे मोटे लग जाते हैं उस वैक्सीन को आने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में और कॉमन पब्लिक तक पहुंचने में। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि सार्स कोरोना वायरस 2 या कोविड की वैक्सीन 1 ही साल में आ गई? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे सार्स 2002 में आया तो करीब 8,500 केस हुए थे, उसके बाद उसके केसेस बढ़ने बंद हो गए। मर्स जो आया 2,500 के आसपास ही केस थे, उसके बाद केस जो है नहीं मिले। तो वैक्सीन का प्रिपरेशन उस टाइम भी तैयार हो गया था, लेकिन चूंकि 2,500 के बाद केस आने बंद हो गए तो वो काम वहीं स्टॉप हो गया। लेकिन कोविड के साथ क्या है, कोविड की इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि उसने धीमे धीमे इन्फेक्ट करते करते अक्रॉस द ग्लोब करीब सारे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर लिया। तो हमारे पास चूँकि जो हमारा कोविड का वायरस है और सार्स और मर्स का वायरस है, जिसके लिए पहले वैक्सीन की तैयारी की जा रही थी, तो एक ब्लूप्रिंट हमारे पास कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने का पहले से तैयार था। चूँकि उसी फैमिली का है हमारा सार्स कोरोना वायरस 2 भी और सार्स और मर्स भी, तो पहले से जो ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार था उसको लेकर के आगे बढ़े। तो कुछ काम पहले से हो रखा था तो उसके आगे काम बढ़ना था, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी हो गई। और एक बात ये हो गई, चूँकि ये अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो ऐसा है कि हर लोग या हर गवर्नमेंट, हर अथॉरिटी सारे काम को छोड़ करके या बैक पे रख करके पहले इसको प्रायोरिटी दे रही थी। तो एक फाइल अगर एक जहाँ से दूसरी जगह जानी है तो वो काम तेज़ हो रहा था, ऐसा नहीं कि 15 दिन 1 महीना कहीं फाइल पड़ी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इसकी वैक्सीन हमारे पास जल्दी अवेलेबल हो गई है। So the aim of vaccination is to prevent morbidity and mortality at personal level and to achieve herd immunity or population immunity or community immunity and prevent ongoing transmission. So lowering the possibility of the pathogen to circulate in the community protects those who cannot be vaccinated due to health conditions like allergies, their age from the disease targeted by vaccine. कि कुछ लोग फिर भी ऐसे रह जाएंगे जिनको वैक्सीन नहीं लगा सकते, तो अगर हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी रहेगी या पॉपुलेशन इम्यूनिटी रहेगी तो उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बगैर इम्यूनाइज किए हुए भी। तो रिपोर्टिंग वंस विलिंगनेस टू गेट वैक्सीनेटेड माइट नॉट बी नेसेसरली अ गुड प्रिडिक्टर ऑफ एक्सेप्टेंस एज वैक्सीन डिसीजंस आर मल्टीफैक्टोरियल एंड कैन चेंज ओवर टाइम। कई स्टडीज़ में देखा गया कि वैक्सीन आने से पहले सर्वे कराया गया कि कितने लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं। सपोज बोले 70% ने बोला कि हम लगाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल जब वैक्सीन आई तो 40% लोग ही पहुँचे। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों ने पहले विलिंगनेस दिखाई थी तो एक्चुअल जब वैक्सीन आ जाए तो वो भी उसको एक्सेप्ट करें। तो वैक्सीन एक्सेप्टेंस के साथ कई चीज़ें साथ में होती हैं, वैक्सीन की सेफ्टी, इफिकेसी, इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी। तो हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा कि इफिकेसी, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में क्या डिफरेंस होता है। सो इफिकेसी इन द हेल्थ सेक्टर इज द कैपेसिटी ऑफ अ गिवन इंटरवेंशन अंडर आइडियल और कंट्रोल्ड कंडीशन, जो कि लैब कंडीशन में हो रही है। इफेक्टिवनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंटरवेंशन टू हैव अ मीनिंगफुल इफेक्ट ऑन पेशेंट्स इन नॉर्मल क्लिनिकल कंडीशंस। पब्लिक में वैक्सीन जा रही है तब क्या हमें मिल रहा है रिजल्ट। इफिशियंसी इज डूइंग थिंग्स इन मोस्ट इकोनॉमिकल वे। सो अगर हम देखें कि हाउ आरएनए वैक्सीन्स वुड वर्क, तो आरएनए का वो पार्ट जो कि स्पाइक प्रोटीन को जो बना रहा है उस पार्ट को लेकर के उसको लिपिड सेल में कवर करके और इंजेक्ट किया गया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी। और जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है उसमें क्या है कि साइंटिस्ट हैव टेकन जीन्स फॉर द स्पाइक प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ कोरोना वायरस
एंड पुट देम इनटू हार्मलेस वायरस टू मेक वैक्सीन, जैसे कि एडिनो वायरस के लिए जो हमारे कोविशील्ड में है या स्पुतनिक में है। तो एडिनो वायरस कई तरह के होते हैं। जो हमें वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किए हैं वो 5 और 26 टाइप यूज़ किया गया है। तो इस कोरोना के टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे नए टर्म्स या जो टर्म्स पहले ही थे लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं सुने, जैसे डॉनिंग डॉफिंग के बारे में या सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। वैसे ही एक वर्ड है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। तो वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स एंड इवन डायग्नोस्टिक सेट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड। वेस्टर्न में अगर यूएस में देखें तो वहाँ FDA है, CDC है। इन इंडिया द रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। For vaccines and medicines, approval is granted after an assessment of their safety and effectiveness. Safety lab condition में, effectiveness practical जो हम public में देख रहे हैं। Based on data from trials, in fact, approval from the regulators is required at every stage of these trials. जैसे कि हमने देखा कि किसी मेडिसिन का वैक्सीन ट्रायल शुरू हुआ तो 10% ही ऐसे होते हैं कि जो थर्ड फेज को पार कर पाते हैं। In emergency situations like the current one, regulatory authorities around the world have developed mechanism to grant interim approvals if there is sufficient evidence to suggest a medical product is safe and effective. Final approval is granted only after completion of the trials and analysis of full data. Until then, emergency use authorization allow the medicine or the vaccine to be used to public. So हम देखेंगे जो कोविड वैक्सीन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं। अगर इश्यूज़ देखें तो इश्यूज़ रिलेटेड इनहेरेंटली टू वैक्सीन इटसेल्फ, और कैसे क्या लॉजिस्टिक यूज़ करेंगे, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पेशेंट्स के क्या जो जिन बंदे को बेनिफिशियरीज को हमें लगाना है उनके क्या कंसर्न हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फियर ऑफ एन इनकम्प्लीट इनएक्टिवेशन ऑफ द वायरस दैट कुड काज आउटब्रेक्स एमंग द वैक्सीन प्रोडक्शन वर्कर्स और इन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशंस। तो ये भी एक इशू हो सकता है जो लोग हेजिडेंसी आती है। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, अब जो हम वैक्सीन लगाएंगे तो कितने दिन तक ये इम्यूनिटी काम करेगी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज की डेट में ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के एरा में जी रहे हैं। कुछ भी हम कहेंगे तो उसको हमको साक्ष्य देना पड़ेगा, तो हमारे पास अभी लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो अभी इसके बारे में क्लियरली बहुत कमेंट नहीं किया जा सकता कि जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं कितने दिन काम करेगा, हमको बूस्टर हर साल लगाना पड़ेगा या नई वैक्सीन हर साल आएगी जैसे इन्फ्लुएंजा की आती है। आज की डेट में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा जल्दबाजी होगी। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, अब वैक्सीन आएगा तो किसको पहले मिलेगा, किसको बाद में मिलेगा, किन कंट्रीज़ को पहले मिलेगा। जैसे कि इवन जब आप लोग या जब मैं भी पढ़ता था तो हम लोग डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसे दो कैटेगरीज पढ़ा करते थे। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने 2014 में कैटेगराइजेशन एक लाए कि इनकम के हिसाब से हाई इनकम कंट्रीज़, लो इनकम कंट्रीज़, लो मिडिल इनकम, हाई मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज़। तो जो अभी देखा ये जा रहा है कि वैक्सीन अभी आई भी नहीं थी, कभी काम चल ही रहा था कि बहुत सारे जो हाई इनकम कंट्रीज उन्होंने पहले से बहुत सारे वैक्सीन बुक करा लिए। इसको बचाने के लिए WHO, यूनिसेफ, गावी ये सब मिलकर के सामने आए, एक कोवैक्स के उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ताकि जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको भी वैक्सीन मिल सके। कोल्ड चेन, अब चूंकि ये वैक्सीन जो कोविड है वायरस से होता है, वैक्सीन के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस है। कुछ वैक्सीन है जिसके लिए टेम्परेचर -70 चाहिए, कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिनके लिए 2 to 8 डिग्री चाहिए। अब जैसे इंडिया है, ये अपने आप में बहुत पहले से ही वैक्सीनेशन की एक लंबी चेन चलाता है, तो 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम फाइज़र या मॉडर्ना वैक्सीन देखें तो उनके लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। इंडिया के सीनियरी में उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ PHC या बाकी सारी जगह हैं जहाँ लाइट की प्रॉब्लम या और स्टॉक्स की प्रॉब्लम है, तो वो मुश्किल है। लेकिन जो हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, ये 2 to 8 डिग्री पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए ठीक है और ये हम आसानी से मास लेवल पे लगा सकते हैं। एक दूसरा इशू होता है वैक्सीन के साथ एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट is a phenomena that occur when an antibody bound to a virus actually helps the viruses to enter the and infect virus, including cells it could be normally infect, such as some type of white blood cells. ADE is not known to occur in COVID-19 but has been observed in dengue fever. तो वैक्सीन देने के बाद और उसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जा रही है, ये कोविड वैक्सीन में फॉर्चुनेटली नहीं देखा गया है। And another possible risk is antibodies can cause in the conditions known as vaccine associated enhanced respiratory disease, ERD. ERD occurs when high levels of antibodies bind to viruses, causing clumps of virus and antibody. The clumps can cause blockage in the small airways in the lungs and potentially
devastating results. What is vaccine hesitancy and confidence? WHO Strategic Advisory Group experts on immunization defined vaccine hesitancy as a delay in acceptance or refusal of vaccination despite availability of vaccination services. जैसे कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन आई, लेकिन 100% लोग लगाने नहीं आए, हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट आई थी. तो वो हेजिडेंसी क्यों है? So vaccine hesitancy is a complex and context specific, varying across time, place and vaccines. It is influenced by a number of factors including issues of confidence. जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अब तो कोरोना जा रहा है, केसेस बहुत कम है, तो ज़रूरत ही क्या है. सो डोंट ट्रस्ट वैक्सीन और प्रोवाइडर. कुछ लोग गवर्नमेंट या पॉलिटिकल व्यू होता है उनका अपना, कहते हैं कि हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे. कंप्लासेंसी, डोंट परसीव अ नीड ऑफ वैक्सीन और डोंट वैल्यू द वैक्सीन. एंड कन्वीनियंस, एक्सेस, कि हमको कितना समय लगेगा, हमको छुट्टी तो नहीं लेनी पड़ेगी, कितना पैसे देना पड़ेगा. ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वैक्सीन हेजिडेंसी और कॉन्फिडेंस को प्रभावित करते हैं. तो कंसर्न अबाउट वैक्सीन hesitancy is growing worldwide. In fact, WHO identified it as one of the top 10 global health threats in 2019. तो हम एक बार देख लेते हैं कि वो टॉप 10 थ्रेट्स क्या हैं ग्लोबल हेल्थ के, जो कि WHO ने बताया. तो एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, थ्रेट ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल सेटिंग्स सच एज रीजन्स अफेक्टेड बाई ड्रॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, Ebola and high threat pathogens, weak primary care and vaccine hesitancy, dengue and HIV. So for the large majority of people, the COVID-19 vaccine is safe. ये सारे स्टडीज़ में देखा गया है, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्रॉस द वर्ल्ड इसे स्टार्ट किया गया है. बट देयर आर सम ग्रुप्स हु मे नीड टू टेक इनटू काउंट एडिशनल कंसिडरेशन व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू गेट द कोविड-19 वैक्सीन और नॉट. अलग अलग कंपनीज की जो वैक्सीन्स हैं उनके जो क्या कहने हैं उस चीज़ को देखना पड़ेगा. उनमें से कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कि पीपल विद एलर्जीज, पीपल हु आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, पीपल्स हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19. इस पर भी कंट्रोवर्सी है कि किसी को अगर कोविड हो चुका है तो उसको देना है कि नहीं देना है, देना कितनी बार देना है. तो कुछ स्पेसिफिकेशन ये है कि कम से कम अगर किसी को एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसको वैक्सीन लगाने नहीं आना चाहिए. उसकी कई वजह हैं. एक तो यही है कि वो जाएगा तो जहाँ जाएगा वहाँ पे कुछ और लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीन लगाने आएंगे. और अगर किसी को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है पहले से तो उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है, कम से कम 3 महीने तक उसको वैक्सीन नहीं अलाउ किया जाएगा. 3 महीने के बाद ही फिर उसको लगाया जा सकता है. पीपल विद अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस एंड चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट्स. सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस. तो उसके पहले हम देख लेते हैं अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस क्या होते हैं. रीयूज ऑफ इंजेक्शन और इक्विपमेंट. इससे क्या होगा? रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेडली डिजीजेस सच एज हेपेटाइटिस बी, सी एंड HIV. इन्फेक्शंस सच एज पैरासिटिक, फंगल, बैक्टीरियल. तो कोविड-19 के वैक्सीन में इस स्टेप से बचने के लिए क्या किया गया? री यूज़ ऑफ इंजेक्शन, इसको डिस्कार्ड ही कर दिया गया. जो हमारी इंजेक्शन जो सीरींज आ रही है वो सिंगल यूज़ ही है. एक बार हमने उसको वैक्सीन किसी को दे दी, फिर वो ऑटो लॉक हो जाती है और दोबारा वो आप पिस्टन खींच ही नहीं सकते. तो इससे हम इस चीज़ को बचा सकते हैं, रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये इन्फेक्शन से बच सकते हैं. रॉन्ग इंजेक्शन टेक्निक, इंजरी टू बेनिफिशियरी और फंक्शनरी एंड एडवर्स इवेंट्स. तो जो वैक्सीनेटर्स थे उनको बार बार ट्रेनिंग दी गई, जो स्पेशली ट्रेंड थे, वेल ट्रेंड थे, उन्हीं को अलाउ किया गया वैक्सीन लगाने के लिए. एडवर्स इवेंट्स एंड रॉन्ग डिस्पोजेबल टेक्निक्स, हार्म टू कम्युनिटी एनवायरनमेंट. अब बायोलॉजिकल वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है इसके लिए बार बार ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद ही वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट किया गया. सो अ सेफ इंजेक्शन इज वन दैट डजंट हार्म द रेसिपिएंट, डजंट एक्सपोज द हेल्थ वर्कर्स टू एनी अवॉइडेबल रिस्क एंड डजंट रिजल्ट इन वेस्ट विच इज डेंजरस टू द कम्युनिटी. बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा. तो उसको बोलते हैं एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन. इज एनी अनटुवर्ड मेडिकल ऑकरेंस विच फॉलो इम्यूनाइजेशन एंड विच डजंट नेसेसरली हैव अ कॉजल रिलेशनशिप विद द यूजेज ऑफ द वैक्सीन. द एडवर्स इवेंट्स मे बी एनी अवॉइडेबल और अनइंटेड डिजीज, सिम्टम, साइंस और एबनॉर्मल लेबोरेटरी फाइंडिंग्स. सो कई तरह के होते हैं. अगर हम देखें तो उनको क्लासीफाई करते हैं माइनर, सीवियर एंड सीरियस. माइनर में कॉमन एंड सेल्फ लिमिटिंग रिएक्शंस होते हैं. लोकल साइड में पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, माइल्ड फीवर, इरिटेबिलिटी, मैलेज हो सकता है. एंड सीरियस में डेथ या इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, वैक्सीन लगाने के बाद किसी की ऐसी तबीयत खराब होगी उसको भर्ती करना पड़े. परसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी. क्लस्टर, अगर एक ही जैसा केस किसी वैक्सीनेशन साइट पे 2 या उससे ज़्यादा मिल गया तो उसको हम क्लस्टर ऑफ केसेस कहते हैं. सिग्निफिकेंट पेरेंटल और कम्युनिटी कंसर्न.
अब जितने लोग वैक्सीन आए हैं उनके ज़्यादातर लोग जो है कंसर्न है कि वैक्सीन लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे सीरियस AEFI में आते हैं और इसके अलावा जो बचते हैं वो सीवियर में आते हैं। सीवियर कैन बी डिसेबलिंग एंड रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग, डोंट लीड टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। Examples include non-hospitalized cases of anaphylaxis that has recovered high grade fever more than 102 degree Fahrenheit. So initial management of anaphylaxis, इसके लिए भी जो हमारे वैक्सीनेटर है, जो टीम है, उनको बार बार ट्रेन किया गया। Suspected anaphylaxis, early onset and rapid progression of symptoms, at least one signs or symptom related to at least 2 symptoms following 3 systems, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, डर्मेटोलॉजिकल। इन 3 सिस्टम में से कोई 2 सिस्टम अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम एनाफाइलैक्सिस के तौर पे लेकर के हम मैनेज करेंगे। सम अदर इश्यूज रिलेटेड विद कोविड वैक्सीनेशन, इश्यूज रिलेटेड टू डेटा शेयरिंग, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस सबका पहले दिया गया, रजिस्ट्रेशन हुआ, तब वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया। तो कुछ लोगों का कंसर्न ये हो, और ये सारी चीज़ें कॉमन प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। बहुत सारी जगह पे सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे चलता है कि हाँ ये डिटेल्स है, इनको वैक्सीन आके लगाना है। तो एक कंसर्न ये हो सकता है कि जो हमारी डेटा जा रहा है उससे कोई फ्रॉड किसी तरह का ना होने पाए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्दी कंट्रीज हैव ऑलरेडी प्री ऑर्डर्ड मोर देन 2 बिलियन डोजेज। एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट, कुछ लोगों का कहना है कि ये तो कोरोना है ही नहीं, ये तो खाली कंट्रोवर्सी है, ऐसी फैलाई जा रही है। कुछ लोग इसे 5G से जोड़ के देखते हैं, तो उनको एजुकेट करना, बताना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कोविन पोर्टल, चूँकि जो वैक्सीन लग रहा है उसको उसी टाइम हमको कोविन पोर्टल पे अपलोड करना होता है ताकि हमारा डेटा सेव हो सके, कलेक्ट हो सके। बहुत सारी जगह पर इसकी इंटरनेट की प्रॉब्लम रही तो वो डेटा अपलोड करने में दिक्कत आई। वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, अभी चूँकि सिर्फ 18 ईयर्स के अबव इसका स्टडी हुआ है। फाइज़र का भी स्टडी 12 से 15 साल के बीच में चल रहा है, लेकिन अभी सिर्फ 18 साल के ऊपर इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया है, वो भी इंडिया में फर्स्ट फेज़ में सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और सेकंड फेज़ में 60 ईयर्स के अबव एंड 45 विद कोमॉर्बिडिटीज़। चिल्ड्रेन को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, इनको अभी अवॉइड किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कहा कि हमने इस पर भी स्टडी नहीं की इसके बारे में, इसलिए इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कंटेंट डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि डेटा अवेलेबल नहीं है तो कंपनी ने सीधे कह दिया कि अभी हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। सो वैक्सीन हेजिटेंसी इज़ नॉट ड्यू टू लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन ओनली, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बारे में ये है कि ऐसा देखा गया किसी एक चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पहले दी जाती है और उसके बाद सक्सेसिव कई जगह से किसी बंदे ने इन्फॉर्मेशन ली, तो जो पहले इन्फॉर्मेशन दी गई वो ज़्यादा टाइम तक रहती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का, बाकी अथॉरिटीज़ का ये हमारा काम होना चाहिए कि हम सही इन्फॉर्मेशन टाइमली पहले से दे दें ताकि उनको डाइल्यूट करने का मौका ही ना मिले। टेलरिंग कम्युनिकेशन विद ईच ऑडियंस इज़ क्रिटिकल, वन साइज फिट ऑल अप्रोच विल नॉट बी एज इफेक्टिव, क्योंकि हर अलग ग्रुप का, हर अलग कम्युनिटी का अलग कंसर्न होगा, उस हिसाब से हमको उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। अब किसी का ये है कि उसमें पिग पड़ा है इसलिए हम नहीं लगवाएंगे, किसी का ये है कि फला पॉलिटिकल पार्टी दे रही इसलिए हम नहीं लगवाएंगे, तो जिसका जो कंसर्न है उस चीज़ को टारगेट करते हुए उस हिसाब से एक्सप्लेन करना होगा। ओपिनियन लीडर्स फॉर टारगेट ऑडियंस शुड बी डिफाइंड एंड द एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। जो भी एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट चल रहे हैं, गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस चीज़ को ट्रेस करके उसको मैनेज करें ताकि पब्लिक में भ्रम न फैले। टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इंक्रीज अपटेक, टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है। कोविन पोर्टल बना कि पहले रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद तब वैक्सीन लगेगी और वो भी अपलोड हो जाएगी, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, सारी चीज़ें। और हर बंदे को मैसेज जा रहा है, SMS भेजा जा रहा है कि आपको कब पहली डोज लगनी है, कब दूसरी डोज लगनी है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूज़ किया गया इस कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन के बारे में। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। इंडियाज़ वैक्सीन रोल आउट रेस्क्यूड द वर्ल्ड फ्रॉम द पैंडमिक, ये किसी कहना है। प्लस पोस्ट वैक्सीनेशन दोज री इन्फेक्टेड में हैव माइल्डर सिम्टम्स। तो ऐसा नहीं, 100% श्योरिटी किसी भी वैक्सीन के साथ नहीं है। मॉडर्ना और फाइजर के साथ भी मोर देन 90% एफिकेसी है। हमारे यहाँ कोवैक्सीन के साथ अराउंड 60-70% है, कोविशील्ड के बाद साथ भी इतना ही है। तो होने के बाद भी, वैक्सीनेशन के बाद भी किसी को इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम BCG के एग्जाम्पल लें तो BCG एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, उसमें ये देखा गया कि BCG ट्यूबरकुलोसिस होने से नहीं बचाता है, लेकिन BCG वैक्सीनेशन बहुत से हो ही रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। तो फिर BCG वैक्सीनेशन की आवश्यकता क्या है? BCG वैक्सीनेशन ट्यूबरकुलोसिस होने से तो नहीं बचाता है, इन्फेक्शन से तो नहीं बचाता है, लेकिन उसको जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे बचाता है। तो उस चीज़ को लेकर के ये देखा गया कि हाँ नहीं, इसको कंटिन्यू रहने देना चाहिए।
तो कोविड के साथ भी ये कि अगर कोविड हो भी जाता है तो उस सीवियर ग्रेड का नहीं होगा। और ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें बार बार लगातार उसके बारे में ट्रेनिंग लेते रहनी चाहिए ताकि हम उस चीज़ के बारे में अपडेट रह सकें और माइनर चीज़ें जान सकें। सो इट डजेंट मैटर हाउ मैनी रिसोर्सेज यू हैव, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ देम इट विल नेवर बी इनफ। एक ही सीढ़ी काफ़ी थी अगर हमें पता होता कि वो सीढ़ी यूज़ कैसे करनी है। तो वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, जो मेडिसिन हमारे पास मौजूद है, तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, हमें पता होगा कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे तो उसका ज़्यादा आउटपुट हम निकाल पाएंगे। जैसे हमने बात की इफिकेसी, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो इफिशियंसी हम तभी बढ़ा पाएंगे जब हमको पता रहेगा उस चीज़ को कैसे हमें इस्तेमाल करना है। थैंक यू।